الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آواز بہت کم ہے، صحیح آ رہی ہو بھائی؟ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم سامعین کرام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں کہ رب کائنات، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، کائنات کے اندر سب سے اونچا مقام محمد الرسول اللہ کا ہے. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اللہ پاک نے جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت، جو عزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، کسی کو بھی عطا نہیں کی. سارے انبیاء کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج عرشوں پر کروائی، یہ اللہ کے نبی کا مقام تھا. سارے انبیاء کو معراج زمین کے اوپر کروائی، یہ ان کا مقام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، باقی انبیاء کو کتابیں دی، فرمایا یہ ان کا مقام تھا. باقی انبیاء جن کو کتابیں دی، اللہ نے فرمایا موسیٰ تورات لینے کے لیے کوہ طور پہاڑ کے اوپر آ. موسیٰ علیہ السلام لینے کے لیے وہاں پر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے فرمایا انجیل لینی ہے تو اپنے معبد خانے کے اندر جا، 40 دن میری عبادت کر، میں تجھے کتاب دوں گا. حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھے زبور دینی ہے،
اپنے معبد خانے کے اندر جا، میری عبادت کر، روزے رکھ، پھر میں نے تجھے کتاب دینی ہے۔ جب باری قرآن کی آئی تو اللہ پاک نے رسول اللہ کو پابند نہیں کیا، آپ فلاں مقام پر جائیں، آپ اتنی عبادت کریں، یہ روزے رکھیں۔ اللہ نے پابند نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی اگر مکہ میں تو قرآن مکہ میں آ رہا ہے، اللہ کے نبی مدینہ میں گئے تو قرآن مدینہ میں آ رہا ہے، اللہ کے نبی بدر میں، احد میں، تبوک میں، یرموک میں، فتح مکہ پر اللہ کا قرآن وہیں پر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ تھا کہ جہاں پر اللہ کے نبی فرمایا قرآن وہیں پر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہونے کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا مقام تھا ویسا قرآن دیا۔ انبیاء، باقی انبیاء کا بھی مقام اعلیٰ ہے، ہم سے ہزاروں گنا درجہ بہتر ہے، اور میں وہ تو ہم تو ان کے پاؤں کے نیچے جو ریت کے ذرے آتے، ہمارا مقام تو ان کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو ان کے جسم کے اوپر پسینہ ہے، ہمارا مقام تو ان انبیاء کے اس پسینے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو انبیاء کے اندر جو مقام اور مرتبے تھے، اور میں اس مقام اور مرتبے سے اللہ پاک نے ان کو کتابیں اور شریعت دی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تو شاہدن ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے فرمایا تو نذیرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اللہ نے فرمایا تو سراج منیرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، اللہ نے فرمایا تو داعین الی اللہ ہے۔ اب دیکھو، ایک نبی ہے، اس کے اندر ایک صفت اللہ نے بیان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تو نے تبلیغ کا جو جوش اور بلبلہ تھا، فرمایا تیرے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان کو بھی آگ کے اندر گرا گئے۔ یعنی کہ جو انبیاء کے اندر ایک ایک صفت خاص تھی، اللہ پاک نے ان ساری صفات کو محمد الرسول اللہ کے اندر دے دی۔ اللہ کے نبی کو فرمایا آپ شاہدن بھی ہے، مبشرن بھی ہے، نذیرہ بھی ہے، داعین الی اللہ بھی ہے، سراجم منیرہ بھی آپ ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے خاص کر دیا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، یعنی ان کے بارے میں پڑھتا ہوں، تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کی ایسی ایسی صفات تھی، باقی انبیاء کے اندر وہ صفات میں نے نہیں پڑھی ہے جو صفات اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دی ہے۔ اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ساتھ یوں فرمایا کرتے تھے، میں آپ کے چہرے کے بارے میں پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں، آپ کے حسن کے بارے میں پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں، آپ کے چلنے کے انداز کو پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں، آپ کے اٹھنے کے انداز کو پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں، آپ کے بولنے کے انداز کو پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں، آپ کی زلفوں کے بارے میں پڑھتا ہوں دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں۔ لیکن کیا کروں، وہی حسن و جمال والا، وہی کمالات والا، وہی سب سے اعلیٰ مقام پانے والا، وہ سب سے اعلیٰ عرفہ اور اعلیٰ کا مرتبہ پانے والا، اپنے آپ کو سر سجدے کے اندر رکھ کر کسی اور کے لیے پکار رہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہی پکار رہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حسن و جمال، آپ کا کردار، آپ کے افعال، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، حتیٰ کہ ہر اللہ کے نبی کا انداز سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی باغیچے کے اندر مختلف پھول لگے ہوں، کوئی چنبیلی کا ہے، کوئی گلاب کا ہے، فرمایا کہ ہر ایک پھول الگ الگ ہے، ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے۔ فرمایا یہی مثال انبیاء کی ہے کہ کائنات کے اندر ہر نبی کی خوشبو الگ الگ ہے، ان کا طریقہ الگ الگ ہے۔ فرمایا جب یہ سارے پھولوں کو ایک جگہ کے اندر ڈال کر
गुलदान के अंदर डालो तो फरमाया गुलदस्ता बनता है। फरमाया इसी तरह सारे अंबिया की सिफात को इकट्ठा करो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं। तो अल्लाह पाक ने ये शाहिदन की जो सिफत है, अल्लाह पाक ने बड़ी निराली सिफत दी है कि आपको हमने शाहिदन बनाया, गवाह बनाया है। हम लोग तो अकलन ये कहते हैं कि यार गवाह तो मौके पर मौजूद होता है। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको, इस उम्मत मोहम्मदिया को बाकी अंबिया की उम्मतों के लिए गवाह बनाया है। अल्लाह पाक ने दूसरे पारे के अंदर फरमाया कि हमने आपकी उम्मत को पहली उम्मतों के ऊपर गवाह बनाया है। इस उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गवाह बनाया। अब इंसान अपनी अकल से सोचता है कि यार गवाह तो मौके के ऊपर मौजूद होता है, फिर उसकी गवाही काबिल कबूल होती है। अगर ऐसा होता तो सारे वकील हाजिर और नाजिर होते, हर जगह पर मौजूद होते, क्योंकि ये मौके महल के ऊपर मौजूद होंगे तो गवाही देने वाले होते। फरमाया कि इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके महल के ऊपर मौजूद नहीं है। कोई आदमी सामने गवाह मौजूद होता है, किसी ने कत्ल करते हुए देखा होता है, कत्ल होते हुए देखा होता है, गोली तलवार मारते हुए देखा होता है, कोई निशानी को देख कर कहता है यार फला आदमी के हाथ में पिस्तौल था, फला आदमी गिरा हुआ था, मरा हुआ था, इस आदमी ने इसको मार दिया है। तो हमारी मिसाल भी ऐसे ही है। हम आजान देते, आजान के अंदर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम रसूलुल्लाह के रसूल होने की गवाही देते हैं। हमने तो रसूल को देखा ही नहीं है, हमने कुरान को उतरते नहीं देखा, मौजज़ात होते हम नहीं देखे, अल्लाह के नबी के उंगली के इशारे हुए चांद के 2 टुकड़े होते हमने नहीं देखे, जिब्राइल का आना हमने नहीं देखा, लेकिन हर आजान के अंदर हम गवाही देते हैं। हर आजान के अंदर हम कहते हैं कि अल्लाह हम गवाही देते हैं कि ये रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। तो गवाह तो मौके महल पर मौजूद होना चाहिए, हम तो मौजूद नहीं थे। सहाबाए कराम मौजूद थे, सहाबाए कराम ने चांद के 2 टुकड़े होते देखा, कुरान को उतरते देखा, जिब्राइल अमीन को आते हुए देखा, कभी अल्लाह का सलाम आयशा के लिए आ रहा है, कभी अबू बकर के लिए आ रहा है, कभी उस्मान के लिए, कभी उमर के लिए, कभी अली के लिए आ रहा है, अल्लाह का सलाम आ रहा है। तो सहाबाए कराम ने नबी के मौजज़ात को देखा, मोहम्मद से रसूलुल्लाह बनते देखा है। तो वो ऐनी गवाह है, शाहिद है, अपनी आंखों से देखा। हम ऐनी गवाह तो नहीं है, अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने रसूलुल्लाह की निशानियां देखी है, हमने गुंबदे खसरा देखा है, हमने कुरान देखा है कि अल्लाह के नबी के ऊपर आया था। अब देखो सारे अंबिया आए, 7 मौजज़ात भी लेकर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके हाथ में असा थी जो ना कभी अस्तहा बन जाता था, हाथ को इस तरह बगल में रखते तो सूरज की तरह, चांद की तरह रोशन हो जाता। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो मौजज़ात भी चले गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए लेकिन मौजज़ात बाकी है। कुरान मौजज़ा सबसे बड़ा जिंदा और जावेद मौजज़ा है और मैं आज भी मौजूद है। लंदन के लोगों ने हर एक किताब का मुआयना किया, हर मुल्क की किताब के अंदर फर्क आ रहा था। इन्होंने कुरान को भी इकट्ठा किया, हर मुल्क के कुरान को इकट्ठा किया। पाकिस्तान की कंपनी में से कुरान लिया, सऊदीया में से एक लिया, इंडिया में से लिया, बांग्लादेश में से लिया, 230 कुरान इकट्ठे किए उन्होंने। अब जो ना मुआयना कर रहे हैं कि देखे तो सही कि पाकिस्तान का कुरान कैसा है, इंडिया का कुरान के अंदर क्या तजवीज है, क्या रद्दो बदल है, बांग्लादेश का जो कुरान है उसके अंदर क्या रद्दो बदल है। उन लोगों ने, उन कुफार ने जब कुरान को देखा, कहा कि जो मशरिक वाली साइड के ऊपर कुरान है, जो मगरब वाली साइड के ऊपर कुरान है, दोनों बिल्कुल एक ही तरह के, इसके अंदर जर्रा बराबर रद्दो बदल नहीं है। तो ये अल्लाह के नबी की गवाही है। हमने अल्लाह के नबी को आंखों से नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के नबी की निशानियों को देखकर हमने रसूलुल्लाह की गवाही दी है। अब देखो अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात कहते हैं कि अल्लाह की तौहीद को मानो,
अल्लाह के वहदहू ला शरीक मानो, अल्लाह को खालिक मानो, अल्लाह को राज़िक मानो। लेकिन अंबिया ने अल्लाह की जात को देखा नहीं है। अंबिया ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 तबलीग की, लेकिन अल्लाह की तौहीद को बयान करते रहे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आरे से चिर गए, लेकिन अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जिन्ना दरियाए नील के अंदर चले गए, अल्लाह ने रास्ते बनाए, लेकिन तौहीद का ऐलान करते रहे। इब्राहिम खलीलुल्लाह आतिशे नमरूद के अंदर छलांग मार कर चले गए, लेकिन अल्लाह की तौहीद को बयान किया। लेकिन अल्लाह की जात को देखा नहीं है, अल्लाह की जात को देखा नहीं। जो उन्होंने भी निशानियां देखी, आसमान को बनाया अल्लाह ने, चांद सूरज को बनाया अल्लाह ने, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, फरमाया ये गवाही, ये निशानियां देकर अल्लाह की जात की तौहीद का ऐलान कर दिया, नबुव्वत का ऐलान कर दिया, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब बारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आई, उन्होंने आसमान को देखकर गवाही नहीं दी, उन्होंने चांद सूरज को देखकर गवाही नहीं दी, बल्कि अर्शों पर अल्लाह के सामने गए। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, सूरत नजब के अंदर हजरत आयशा इसकी तफसीर के अंदर फरमाती है, फरमाया कि इतने करीब हो गए थे जितना तीर की कमान होती है, फरमाया जितने दो सिरे उनके दूर होते। इधर अल्लाह की नूरानियत है, इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठे हुए, फरमाया इतने करीब हुए, अल्लाह की जात को अपनी आंखों से देखा। फरमाया तब जाकर कहा ये वहदहू ला शरीक है, ये खालिक कायनात है, ये मालिक कायनात, औलाद देने वाली ये जात है। इब्राहिम ने कहा ये अल्लाह तू है, अल्लाह औलाद देने वाली, बेनियाज जात तू है, अहद जात तू है, समद जात तू है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे नहीं कहा, बल्कि ये अल्लाह तू है, ये है वो अल्लाह जिसे मैं देख कर आया हूं, अपनी निगाहों से देख कर आया हूं, ये है वो अल्लाह। जन देखो बाकी अंबिया ने अल्लाह की जात को देखा नहीं है, अल्लाह की तौहीद के लिए कट गए हैं, अपनी औलाद को ज़िबा करवा दिया, अल्लाह की तौहीद के ऐलान को नहीं छोड़ा, अपने घरबार को छोड़ दिया, अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह की जात को देखा नहीं, फिर भी तौहीद के लिए डट गए, आतिशे नमरूद में भी चले गए। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐनी गवाह थे, आंखों से देख कर आए थे। तो अंबिया ने निशानियां देखी थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐनी गवाह थे, मौके को देख कर आए थे। फरमाया कि ये वहदहू ला शरीक है। इसी तरह हमने नबी को देखा नहीं है, हमने नबी की निशानियां देखी हैं। मदीना के अंदर जाते हैं, मूसा खान अलबाजी रहमतुल्लाह अलैह अभी हाल ही में वफात पाई है, मदीना के अंदर चले गए, बदर के मैदान के अंदर जाकर खड़े होकर कहने लगे कि बदर के मैदान तू कितना खुशकिस्मत है कि तेरे ऊपर नबी के कदम लगे हैं, तुम ज़र्रात कितने खुश नसीब हो, तुम्हारे ऊपर नबी के कदम लगे हैं, नबी का बाबरकत जिस्म तुम्हारे ऊपर लगाए। मुझे देख लो, मैं अरसे दराज के बाद 1400 साल के बाद आया हूं, मैंने नबी के जात को नहीं देखा, नबी के जिस्म को नहीं देखा, नबी के हुस्न को नहीं देखा, नबी के खुलक को नहीं देखा, नबी के अखलाक को नहीं देखा। तुम वो खुश नसीब हो कि तुमने नबी को देखा है। आखिर में कहने लगे कहे मट्टी के जर्रात, रेत के जर्रात, कंकरों तुमने नबी को देखा है, चलो मैंने नबी को नहीं देखा, कम अज कम वो पत्थर ही देख लो जिसके ऊपर नबी के कदम लगे हैं, वो जर्रात ही देख लो जिसके ऊपर नबी के कदम लगे हैं। तो इधर मैदान बदर के अंदर से एक पत्थर उधर से बोल रहा है, इधर से बोल रहे, कहे मूसा मैं वो खुश नसीब हूं कि जिसके ऊपर मोहम्मद मुस्तफा के कदम लगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे हैं। तो हम निशानियां देखकर नबी के ऊपर ईमान लेकर आए हैं। लेकिन सहाबाए कराम तो ये नहीं गवाह थे, सहाबाए कराम ने अपनी आंखों से देखा है। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह रोजे रसूल के साए के अंदर बैठकर जिन्हें 10 साल तक अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ाई है, लेकिन जो ना हम हदीस पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो कहते काल काल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया है।
तो वो इस तरह नहीं कहा करते थे, रोज़े रसूल की तरफ इशारा करके कहते आला रसूल हाजा रसूलुल्लाह, इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हमने निशानियां देखी हैं, सहाबाए कराम ने निशानियां नहीं देखी, वो ऐनी गवाह थे। नबी के चलने का अंदाज सहाबा से पता चलेगा। अगर किसी रिवायत के अंदर जो हम रिवायत बयान करते हैं, अगर बीच में सहाबी का नाम ना हो तो उस रिवायत को भी काबिल कबूल नहीं किया जाता कि ऐनी गवाह नहीं है, शाहिद सामने नहीं है, जिसने नबी के चलने को देखा, जो हदीस बयान कर रहे, नबी के लबों को हिलते, नबी की जबान से आवाज के आते हुए जिस नबी ने सुना है, सहाबी ने सुना है, वो सहाबी रिवायत करने वाला अगर मौजूद ना हो तो उस रिवायत को काबिल कबूल नहीं किया जाता। क्यों? जिस तरह जो ना ऐनी गवाह अगर जो है मौजूद ना हो, फरमाया कि गवाही काबिल कबूल नहीं होती, इसी तरह सहाबी रिवायत में ना हो तो वो रिवायत भी काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि ऐनी शाहिद सामने नहीं होता। तो सहाबाए कराम ने नबी के शाहिद हैं, नबी के गवाह हैं, उन्होंने नबी की गवाही दी है कि हमने नबी को देखा है। कभी बदर की लड़ाई के अंदर, कभी ओहद की लड़ाई के अंदर हमने नबी को देखा है, उंगली से चांद के 2 टुकड़े करते हुए हमने नबी को देखा है, उंगलियों से पानी के चश्मे निकलते हुए हमने देखा है। हजरत जाबिर के घर के अंदर जो थोड़ी सी रोटियां का आटा और थोड़ा सा सालन है, लेकिन 1400 सहाबाए कराम को नबी की लुआब की बरकत से पूरा होते हुए हमने देखा है। वो शाहिद थे, ऐनी शाहिद थे, हमने निशानियां देखी है नबी की। तो अल्लाह का कुरान भी ये कहते हैं शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुबश्शिरन कहा है, अल्लाह पाक ने मुबश्शिरन कहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, 200 साल का अरसा थोड़ा अरसा नहीं है, 200 साल का अरसा एक नौजवान गुनाह पे गुनाह करता रहा, बुराइयों पे बुराइयां करता रहा, सारी जिंदगी सरकशी में गुजार दी, सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी, सारी जिंदगी मूसा जैसे पैगंबर से दूर में गुजार दी, अल्लाह की तौहीद से दूर में गुजार दी। कभी अपनी जबान पर अल्लाह का नाम नहीं लेकर आया, कभी जबान पर मूसा का नाम नहीं लेकर आया। जिस वक्त मर गया, बस्ती वालों ने उठाया और कूड़ा क्रिकेट में जाकर फेंक दिया। और ऐसा ही करना चाहिए, जो अल्लाह की जात का ना बन सका मेरा और आपका बन सकता है, जो अल्लाह के नबी का ना बन सका, पैगंबर का ना बना, मेरा और आपका क्या बन सकता है। अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें जुमला कहा करते थे कि आज सहाबाए कराम के गुस्ताख हमारे साथ जिन्हें मिलने के लिए तैयार है, हमें मौलाना साहिब कहते हैं, हमारे साथ मिलने के लिए तैयार है, जफियां डालने के लिए तैयार है, लेकिन नबी के सहाबा को जन्नती मानने के लिए तैयार नहीं। बताओ मेरे और आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो अबू बकर के अंदर नहीं थी? मेरे और आपके अंदर कौन सी ऐसी सिफात है जो उमर में मौजूद नहीं थी, उस्मान और अली में मौजूद नहीं थी? हमें तो साहिब कहने के लिए तैयार, लेकिन नबी के ऐन गवाहों को जिन्हें साहिब कहने के लिए, जन्नती कहने के लिए तैयार नहीं है। तो बताओ, वो जिस वक्त 200 साल गुनाहों की जिंदगी गुजारने के बाद मर गया तो उठाकर कूड़ा क्रिकेट पर फेंक दिया। जब फेंक दिया, अल्लाह पाक ने वक्त के पैगंबर मूसा कलीम को वही की, जाओ मेरे एक बंदा, नेक बंदा, नेकोकार बंदा, 200 साल नाफरमानी करने वाला, कहा जाओ इसका उठाओ, इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा करवाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनकी उम्मतियों को भी पता चल गया कि वक्त का पैगंबर आया है, हमारे इलाके में आया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कैसे आना हुआ? यहाँ पर एक अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का वली है, नेकोकार है, बुजुर्गवार है, उसका जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने भेजा है, अल्लाह पाक ने भेजा है, बिल्कुल अल्लाह पाक ने भेजा है। कहा कहां पर है? जन तलाश किए तो कूड़ा क्रिकेट के ऊपर पड़ा हुआ था, ढेर के ऊपर पड़ा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबुव्वत वाले हाथ से उठाया। लोगों ने कहा मूसा किसकी बात कर रहे हैं? 200 साल, 2 साल नहीं 200 साल नाफरमानी करता रहा, सरकशी करता रहा, अल्लाह की बगावत करता रहा, अल्लाह के अहकाम को तोड़ता रहा, तेरे तरीकों को छोड़ता रहा, और ये अल्लाह का दोस्त बन गया, ये अल्लाह का वली बन गया है।
موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ گنہگار سرکش ہے اور تو کہتے ہیں میرا دوست ہے۔ کہا بالکل موسیٰ، یہ میرے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات کے اندر جو ذکر ہے لفظ تابا تابا کے ساتھ آتا ہے۔ تابا تابا کہتے ہیں محمد کو، کہ جب اس نے تورات کے اندر دیکھا لفظ تابا تابا لکھا ہوا تھا، میرے آخری پیغمبر کا نام لکھا ہوا تھا، اس نے اسے چوم لیا تھا، محبت کے اندر آ کر چوم لیا۔ اس کے ادا کو میں نے اتنا پسند کیا کہ اس کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، ساری اداؤں کو معاف کر دیا۔ تو ہمارے پیغمبر کا مقام سب سے اعلیٰ کیوں اعلیٰ ہے کہ وہ عینی گواہ ہے اللہ کے، وہ عینی گواہ ہے اللہ کے، اللہ کی ذات کو دیکھنے والے تنے تنا محمد الرسول اللہ۔ بشر حافی ایک بزرگ گزرے ہیں، شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے، شراب کے نشے میں مدہوش رہا کرتے تھے، سارا دن شراب پیا کرتے تھے، صبح کو پیتے شام تک شراب کے نشے میں مدہوش، شام کو پیتے صبح تک شراب کے نشے میں مدہوش پڑے رہتے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے، ایک کاغذ کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کی ذات بھی بڑی تو اللہ کا نام بھی بڑا ہے۔ تو انہوں نے جس وقت شراب کے نشے میں نگاہ پڑ گئی، یار اللہ کا نام ہے، زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اٹھایا، چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا، کہ اللہ تیری ذات اونچی تو تیرا نام بھی تو اونچا ہے، اٹھا کر اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا، جاگ چلا گیا شراب خانے کے اندر، شراب کے اندر مدہوش ہو گیا۔ اسی رات کو وقت کے ولی کو خواب کے اندر اللہ کا دیدار ہوا، اللہ نے فرمایا کہ تو نماز، روزہ، زکات، احکام، میری شریعت کو، میرے رسول کے طریقے کو اپنا کر ولی بنا ہے، جا میرے نیک بزرگوار جناب ولی فلاں جگہ کے اوپر، فلاں محلے کے اندر، فلاں گلی کے اندر، فلاں طرح کا دروازہ ہے، دروازے کے اندر رہتے اسے میرا سلام دے کر، میرا سلام دے کر۔ اب وہ اللہ کا ولی اٹھا، یار اللہ کا سلام تو ابو بکر کے لیے آیا کرتا تھا، عمر عثمان کے لیے آیا کرتا تھا، عائشہ کے لیے آیا کرتا تھا، طلحہ زبیر کے لیے آیا کرتا تھا، یہ کون سے اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے جس کے لیے اللہ کا سلام آ رہا ہے، اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ اٹھے، تیل چھیل داڑھی کو لگایا، پگڑی پہنی کہ یار آج اپنے سے بڑے بزرگ سے ملنے کا موقع مل رہا ہے، جیسے یہ دروازے کے اوپر اللہ پاک نے بتلا دیا تھا کہ یہ دروازہ ہے، جا کر دروازے کے اوپر دستک دی، کا بشر سے ملنا ہے۔ اندر سے اس کی عورت نے کہا کہ آج شرابی کے دروازے پر ایک اللہ کے ولی کا کیا کام ہے؟ بشر حافی پریشان جو نا وہ اللہ کا ولی پریشان ہو گیا کہ آج جو نا یہ بھی شرابی کا دروازہ ہے، یہ اللہ کے نافرمان کا دروازہ ہے، اس کے لیے اللہ کا سلام آیا ہے۔ اب پریشان ہو گئے، یہ شرابی ہے، یہ سارا دن اللہ کے احکام کو چھوڑنے اور توڑنے والا، اللہ کا سلام اس کے لیے آیا ہے۔ کہا کہاں پر ملے گا؟ کہا جاؤ شراب خانے کے اندر ملے گا۔ چلے گئے شراب خانے کے اندر، دروازے کے اوپر دربان سے کہا جاؤ بشر کو بلا کر لے کر آؤ۔ بشر کو بلایا، کہا کیا کام ہے؟ کہتے کہ بشر شراب کے نشے میں مدہوش تھا، جوتیاں اتار کر بیٹھا ہوا تھا، شراب کے نشے میں مدہوش تھا، اسے پتہ نہیں تھا کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون بلا رہے۔ دربان نے کہا کہ تجھے باہر کوئی بلانے کے لیے ہے۔ کہا میرے شرابی سے کسی کا کیا کام؟ اسے کہ جا اپنا کام کر لے۔ کہا نہیں تجھے کوئی بلانے کے لیے آئے۔ بشر کہتے میں بغیر جوتیوں کے چلا گیا، جنا لڑکتا ہوا، اڑتا بیٹھتا گرتے ہوئے دروازے کے اوپر چلا گیا، دیکھا تو سامنے پگڑی والا، داڑھی والا تھا، اللہ کا ولی تھا۔ میں نے کہا شرابی سے اللہ کے ولی کا کیا کام ہے؟ مجھ سے کیسے ملنے کے لیے آنا ہوا؟ اس اللہ کے ولی نے کہا میں آیا نہیں ہوں، الہ العالمین نے بھیجا ہے، رب العالمین نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا اللہ پاک نے اپنا سلام تیرے لیے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث پاک کے بھی اندر آتا ہے کہ سب سے بڑا نشہ اللہ کی محبت کا ہے، آرے سے چر جاتے ہیں، اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑتے، آتش نمرود کے اندر چھلانگ لگا دیتے، اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑتے۔ کہا جیسے ہی اس نے کہا میرے لیے اللہ کا سلام آیا تو وہ شراب کا نشہ سارا اتر گیا، سارا شراب کا نشہ اتر گیا، میرے لیے اللہ کا سلام آیا، فوراً شراب خانے سے باہر آیا۔ کہ یار تو نے تو کوئی ایسی نیکی کی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کا سلام تیرے لیے آ رہا ہے۔ میں نے تو کوئی کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ میں نے نہیں رکھا، زکات صدقات خیرات میں نے کبھی کسی فقیر کو دیکھا بھی نہیں ہے،
जो कोई दरवाजे के ऊपर आता है झड़क देता हूँ, किसी अल्लाह के वली को देखता हूँ गाली गलौज करता हूँ, मैं भला कैसे मेरे लिए अल्लाह का सलाम आ सकता है? कहा कोई तो नेकी की होगी। कहा कि हाँ, एक मर्तबा में शराब के नशे में मैं आ रहा था, अल्लाह का नाम जमीन के ऊपर पड़ा था, मैंने जमीन से उठाया, चूमा आंखों के साथ लगाया, ऊंची जगह के ऊपर रख दिया। कहा यही वजह है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने तेरे लिए अपना सलाम भेजा है। कहते हैं कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसके बाद जब ये मस्जिद जाया करते थे बगैर जूतियों के, इनको बिशर हाफी कहते हैं, हाफी कहते हैं बगैर जूतियों वाला, इनका नाम ही बिशर हाफी पड़ गया। कहते जिस रास्ते से घर से ये मस्जिद आया करते थे, अल्लाह पाक ने जानवरों को भी जन्ना उनके ताबे कर दिया। किसी जानवर को इजाजत नहीं थी रास्ते में पेशाब पखाना करने की, किसी चिड़िया को इजाजत नहीं थी, किसी भैंस गाय को इजाजत नहीं थी कि रास्ते में गोबर कर ले। एक दिन जो न पड़ोसी उठा, देखा कि मस्जिद की तरफ आ रहा था, रास्ते में गोबर पड़ा हुआ था या जो ना कोई पखाना पड़ा हुआ था, फौरन दौड़ता हुआ घर गया। बीवी से कहते कि लगती आज विशर दुनिया को छोड़कर चला गया। बीवी ने कहा किसी ने इतला नहीं दी, ऐलान नहीं हुआ, तू कैसे कहते है? आज रास्ते के अंदर मैंने पखाना देखा है, पेशाब देखा है, गोबर देखा है कि जब तक बिशर था किसी जानवर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि रास्ते के अंदर पखाना पेशाब कर लेता। कि अल्लाह का बन गया, अल्लाह पाक ने सारे जानवरों को उसके ताबे कर दिया है। तो अल्लाह, हम लोग निशानियों को देखकर अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं कि हमने नबी के रोजे को देखा, कुरान को देखा, हमने मान लिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन सहाबा कराम एनी गवाह हैं रसूलुल्लाह के चलने को देखा, रसूलुल्लाह की सिपह सलारी में 27 जंगें लड़ी है सहाबा कराम ने। जो 87 जंगे अल्लाह के नबी के जमाने के अंदर हुई, 27 जंगों के अंदर अल्लाह के नबी खुद शरीक हुए। फरमाया कि अल्लाह के नबी को वो ऐनी गवाह है। इसी तरह अंबिया, फरमाया कि नबी अल्लाह की जात को देखा नहीं है उन्होंने, जिन्हें चांद सूरज सितारों को देखकर फरमाया कि अल्लाह की जात मौजूद है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। फरमाया लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के खालिक और मालिक होने के ऐनी गवाह थे, अल्लाह की जात को देख कर आए थे, अल्लाह की जात को देख कर आए थे। सारा मकाम और मर्तबा अल्लाह पाक ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कायनात में सबसे आला मकाम और मर्तबा अल्लाह के नबी का है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम कायनात में है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मकाम इतना है, मर्तबा इतना है, तो उनके अखलाक भी अल्लाह का कुरान कहते हैं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक हमने आपको खुल्क़ अज़ीम सबसे बेहतरीन अखलाक दिए हैं। तो हम रसूलुल्लाह के तरीकों को छोड़कर गैरों के तरीकों पर चल रहे हैं। रसूलुल्लाह का तरीका गोया हमें नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह अच्छा नहीं लगता, गैरों के तरीके अच्छे लगते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत हमें अच्छी नहीं लगती। जिन्हें शेख शफी रहमतुल्लाह अलैह तकी उस्मानी साहब के वालिद साहब फरमाते कि मैं रोजे रसूल के सामने था, एक आदमी ने मुझसे कहा कि रोजे रसूल के ऊपर खड़ा है तो जना अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखने का कोई वजीफा ही बता दे। मैंने कहा तेरे अंदर कोई हिम्मत है रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखने की? कि रसूलुल्लाह के मुताबिक तेरे तरीका कौन सा है? उठने बैठने सोने जागने का, खाने का, पीने का, कोई अपने जिस्म के एतबार से बता कि तेरे अंदर ये रसूलुल्लाह का तरीका है। फिर कैसे इतनी हिम्मत कर रहा है कि रसूलुल्लाह को देखने की? कहा मैं जो है जब रसूलुल्लाह के रोजे के ऊपर गया तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। हालांकि वक्त के वली थे, तफसीर लिखने वाले हैं, तकी उस्मानी साहब के वालिद साहिब है, अल्लाह के बुजुर्ग हैं, वो इमाम आजम मुफ्ती आजम जिन्हें कहा जाता था। फरमाया कि वो है हमारी पाकिस्तान में मशरकी साइड के ऊपर जो इस जना पाकिस्तान का परचम जिन्होंने लहराया, और मैं वो शफी मुफ्ती आजम पाकिस्तान। कहते हैं कि जिस वक्त मैं रोजे रसूल के ऊपर गया मेरे जिस्म के ऊपर कभी तारी होगी, जाऊं तो कैसे जाऊं, किस चेहरे के साथ जाऊं, कौन से जबान से नबी के ऊपर दुरूद पढ़ूंगा, कैसे सलाम पेश करूंगा? लोग आते मैं उनको आगे करता रहा, जिन्हें पिलर के पीछे खड़ा हो गया, आवाज आई, कहते हैं मैंने आवाज सुनी। दुरूद पाक उनकी फजाइल दुरूद उनकी किताब है, उसके अंदर लिखा है, कहते हैं कि आवाज आई जो मेरी सुन्नतों को अपनाता है लाखों मील दूर होकर भी मेरे करीब होता है,
जो मेरी सुन्नतों को नहीं अपनाता, मेरे रोजे की जालियों को भी पकड़ ले तो फिर भी लाखों मील दूर ही मुझसे होता है। तो हम अगरचे रोजे रसूल के ऊपर जालियों के पकड़ भी ले, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नतों से हम दूर हैं तो फिर भी हम लाखों दूर हैं रसूलुल्लाह से। अगर हम आज दूर बैठे हुए हैं, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हमारी जिंदगी में है तो हम रसूलुल्लाह के करीब हैं, रसूलुल्लाह के कुर्ब के अंदर है। तो हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करें, खुद भी सुन्नतों के मुताबिक चलें, खाने के अंदाज को देखें सुन्नत के मुताबिक, पीने के अंदाज को देखें सुन्नत के मुताबिक, चलने का नबी का अंदाज कैसे होता था जो सुन्नत के मुताबिक, सर के ऊपर तेल अल्लाह के नबी लगाते थे सुन्नत के मुताबिक लगाए। फरमाया कि सवाब ही सवाब है। अल्लाह के नबी हाथ में तेल लगाते, फिर जो ना भौरों के ऊपर लगाते, फिर उसके बाद पलकों के ऊपर लगाते, फिर अल्लाह के नबी दरमियान में लगाते, फिर दाईं साइड के ऊपर लगाते, फिर बाईं साइड के ऊपर लगाते। इसी तरह जब दाढ़ी के ऊपर लगाते, अल्लाह के नबी तेल लेते, पहले जो ना थोड़ी जो सी जिसे हम बच्चा दाढ़ी कहते इसके ऊपर लगाते, फिर दाईं साइड के ऊपर लगाते, फिर बाईं साइड के ऊपर, या फिर कभी कभार अल्लाह के नबी लेकर तेल इस तरह मल कर दाढ़ी के ऊपर ऐसे करके लगाते थे, यानी नीचे से शुरू करते। यानी हर काम अगर हम सुन्नत के मुताबिक करें, और मैं देखो हम सुन्नत के मुताबिक निकाह करते हैं, जो ना ये सारी जिंदगी की सुन्नत का सवाब होता है। जब तक मियां बीवी जिंदा होते हैं या जन्ना मर जाए तो हो सकता है उसके बाद भी सवाब मिले कि नबी की सुन्नत के ऊपर दुनिया से गया है, और मैं निकाह हो गया नबी की सुन्नत समझ कर किया है, तो जब तक जिंदा रहेगा सुन्नत का सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह तेल लगाया, अगले वक्त तक जब तक तेल नहीं लगाएगा सुन्नत का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता